الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صاحب صدر عزیزم خالد طاہر، معزز حاضرین، السلام علیکم. کسی شخص کے لیے بھی وہ لمحہ بڑا بھاری اور اذیتناک ہوتا ہے جب وہ کسی اپنے کو، کسی ساتھی کو، کسی پیارے کو مرحوم کہتا ہے، اس کے لیے ماضی گسی کا استعمال کرتا ہے. میں بھی اسی بھاری لمحے اور اذیتناک لمحے سے گزر رہا ہوں. رمضان اور میری دوستی 2-4 سالوں کی یا 8-10 سالوں کی بات نہیں، بلکہ نصف صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے. ہم 27 سال کمانڈ میں اکٹھی رہے، شرارتیں بھی کی، اچھے کام بھی کیے، بہت اچھے کام کیے، ایسے کام کیے جو دوسروں کی بس کی بات نہیں تھی. ہماری رگوں میں خون کی بجائے پارا اور بجلی دوڑا کرتی تھی. ہم دونوں نے کبھی کسی پہاڑ کی سربلندی کو، کسی دریا کے تیز دھارے کو، کسی تپتے صحرا کو یا سمندر کی گہرائی کو خاطر میں نہیں لایا. یہ میری دوستی اور ان کی دوستی کا معراج تھی، اعزاز تھا ہمارے لیے، فخر تھا ہمارے لیے کہ جب کوئی رمضان سے ملا کرتا تھا میں وہاں نہیں ہوتا تھا. ایون ریٹائرڈ جنرل صاحبان تو پوچھتے تھے رمضان تو دوسرا کدھر ہے، اور جب مجھ سے ملا کرتے تھے رمضان وہاں نہیں ہوتے تھے تو مجھ سے پوچھا کرتے تھے دوسرا کیا کر رہا ہے آج کل. رمضان سے دوسرا پوچھا جائے تو غلام رسول مطلب ہوتا تھا، مجھ سے پوچھا جائے تو رمضان ہوتے تھے. لیکن آج اگر کوئی مجھ سے پوچھے دوسرا کہاں ہے تو کیا بتاؤں گا، روٹ گیا ہمیشہ کے لیے. اب تو کوئی حکیم ارشد قریشی بھی نہیں جو کہ ہمیں راضی کر سکے، اس کو واپس لا سکے. معزز حاضرین، کمانڈو میں باسکٹ بال بہت کھیلا جاتا ہے، ورزش ہوتی ہے، لیکن وہ کھیل ایسا ہے کہ جس میں انڈو پاک کی لڑائی ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ ایس ایس جی کی ریفری جو ہے باسکٹ بال کی وہ وسل سے نہیں ہوتی بلکہ پستول ہونا چاہیے، فول کرنے والے کو گولی مار کے جائیں. تو میں اور یہ دونوں بہت اچھے کھلاڑی تھے باسکٹ بال کے، فرسٹ 5 میں ہوا کرتے تھے کمانڈو کے. تو دونوں الگ الگ ٹیم میں ہوا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ہمارے جذبات بڑے عروج پر ہو جاتے تھے جب ہم دونوں مخالف کھیلتے تھے، کیونکہ ہار ہم دونوں کو پسند نہیں تھی. کرو کمانڈو کو کسی کو بھی ہار پسند نہیں ہوتی، لیکن ہم اس معاملے میں بہت جذباتی تھے. تو طلب کلامی ہوئی تو ہمارے قومی کمانڈر ان دنوں میں جن کو میں نے ذکر کیا، حکیم ارشد قریشی میجر جنرل ریٹائرڈ ہیں، وہ ہمارے قومی کمانڈر تھے. انہوں نے صبح دفتر میں طلب کر لیا. ہم جو باتیں کر رہی تو ہمیں تو پتا تھا کہ ہم الگ سے اوپر باتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے سمجھا شاید یہ سنجیدہ ہے، تو انہوں نے ہمیں بلایا. 40 سال ہو گئے اس بات کو، لیکن مجھے آج بھی ان کے الفاظ یاد ہیں کہ تم بھی آپس میں لڑو گے، تم بھی آپس میں جھگڑو گے، ناراض ہوگے، پھر دوستی کی کون اعتبار کرے گا؟ دوستی کی مثال کدھر سے لائیں گے ہم؟ رسی لو، ان کے ہاتھ باندھ دو. 6 فٹ کی رسی سے ہمارے ہاتھ باندھ دیا، اور جب تک تم راضی نہیں ہوگے رسی نہیں کھولو گے سوائے ڈریس تبدیل کرنے کے. ہم تو راضی تھے پہلے سے. جس دن وہ میچ ہوا اس دن شام کو 1 پلیٹ میں ہم کھانا کھایا کرتے، 1 پلیٹ میں کھانا کھایا. بہرحال پھر ایک رسی سے ہم نے 2-3 افسران گرائے نیوی کے، شکایتیں ہوئی تو پھر انہوں نے کہا رسی کھول دو، ادھر لڑو گی نہیں. آج دونوں ہاتھ ہیں، کوئی باندھنے والا نہیں، دوسرا ہاتھ کوئی نہیں. ہمارے کمانڈو کا ایک ماٹو ہے، کچھ صاحب نے بتایا ہے، ذاتی باتیں میں نہیں کر سکوں گا. رمضان کہتا تھا بہت بولتا ہے، لیکن آج رمضان میں نہیں بول سکوں گا. ماٹو ہے ہمارا کہ تمہاری دوستی صرف موت ختم کر سکتی ہے. موت نے میرا دوست تو چھین لیا، لیکن میرے دل سے اس کی یاد، اس کی دوستی نہیں مٹا سکی، ہمیشہ دل میں رہے گا. میں باتیں سنانا شروع کر دوں
हमने रन ऑफ कच्छ में 64 में लड़ाई लड़ी, फिर हम मकबूजा कश्मीर में रहे 1965 के अवाइल में, फिर हमने ड्राप किया 1965 में, फिर 71 में हमने ये किया, बलूचिस्तान में हमने ये किया। तो ये साहब ये कह रहे थे किताब लिखी जाएगी, तो मैं तो कई किताबें ऐसे लिख सकता हूँ और लिखने की हिम्मत भी है, लेकिन बस रमज़ान चला गया है। मैं एक बात और अर्ज़ कर दूँ आपके सामने कि रमज़ान न सिर्फ एक अच्छा बाप था, एक अच्छा दोस्त था, अच्छा सिपाही था, दोस्ती करना भी जानता था, दोस्ती निभाना भी जानता था। मैं जब माजी में मुड़ के झांकूंगा तो जो खुशगवार सबसे याद होगी वो रमज़ान होगा और उसकी दोस्ती होगी। मेरी दुआ है, मैं अजीज़ों बहुत बोलने वाला आदमी हूँ कि हम दोनों इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे, फ़ॉरेन के कोर्स जो आते थे उनके भी उस्ताद हुआ करते थे। अल्लाह के फजल करम के से हमारे दोनों के शागिर्द जो हैं इवन मुल्क के सदर भी रहे, जर्नल भी रहे, लेकिन मैं आज बात ज़्यादा नहीं कर सकूँगा। मैं माजरत चाहता हूँ अजीज़म खालिद से, बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे दोस्त को अपने जवार रहमत में जगह दे और इनको लवाकीन को, उनकी बेगम को, उनके बेटों को, उनकी बेटी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इनको हर गम से, हर दुख से, हर तकलीफ से महफूज रखे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। उन्होंने भी जज्बाती कर दिया, क्योंकि इनकी उनके साथ मोहब्बत और जो शख्सियत है वो हमसे भी ज़्यादा है। हमने तो उनको बहुत संभालने के बाद देखा, लेकिन ये हमारे पैदाइश से पहले भी इनके साथ इनकी चल रही थी। और इनकी मैं मुँह की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी कमांडो वाले से पूछ लीजिएगा, आपके कई भी अजीज़ वकार हैं SSG में हैं, तो इन दोनों को आर्मी से 25-26 साल हो गए, लेकिन अभी भी ड्यूरिंग कोर्सेज इन दोनों की एग्जांपल दी जाती है, कैप्टन रमजान साहब की और सुधार रमसूल साहब की, कि इन जैसे बनो। अब हम लोग इनके बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, बाज़ काम जाते हैं, उनके बड़े असासदारे हैं। अब अंकल हमारे बैठे हुए हैं, इनकी बेहतर पता है क्या टकिला है या त्रिपला डैम है, मंगला डैम है। आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सख्ती हुई है, तो हम अभी तक अपने वाला कार्ड यूज़ करते हैं, हमारी हेड से पहचान वो नहीं है। हाँ, आप बिलीव करो कि मैं जस्ट कहता हूँ मैं कैप्टन रमजान का बैठा हूँ, तो हमें हाथ में बैठा लेते हैं, अंदर हम बाहर में खड़े हैं आप लोग, और इतना हमें प्रोटोकॉल दिया जाता है कि हमें शर्म आनी शुरू हो जाती है। हम बड़ा मतलब है कि अपने आप करते हैं कि हमारे वालिद हैं, हम उनकी शायद एहतराम नहीं करते जितना ये लोग इनका एहतराम करते हैं। हालांकि लोगों ने, उनमें से कुछ लोगों ने वालिद साहब को देखा भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ड्यूरिंग कोर्सेज उनके नाम सुन सुन के, उनकी एग्जाम्पल सुन सुन के, उनके कारनामे सुन सुन के, वो सब लोग कैप्टन रमजान साहब से, रमसूल साहब से, इनका और दोस्तों ने बड़ी लंबी लाइन है। तो इनके दोस्त कुछ और थे, वो आज तशरीफ नहीं लाए, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं इनके बारे में कि इन लोगों की लाइफ कैसे गुजरी है। मेरा अल्लाह मियाँ उनको जन्नत में जगह दे दी, और जो जिंदा हैं उन्हें अल्लाह मियाँ तौफीक देता रहे कि अच्छे से काम करते रहे। मुझे ये हमारे लिए बहुत बड़ा एहसास है। और वालिद की वफ़ात के बाद मैंने कोशिश की है कि जितने मुझे दोस्त थे उनसे इन टच रहूँ, फ़ोन के थ्रू वैसे जाके हम मिलते हैं उनसे, और ये हमारे लिए दुआएं करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त बेहतर एग्जाम्पल है। अब आप और इसलिए कि मैं उसको शार्ट कर रहा हूँ, मुझे इसको हम और कुछ गेस्ट आए थे, लेकिन क्योंकि उन्हें मैं कॉल नहीं कर रहा अभी, मैं आखिर में, क्योंकि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग आज चल रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पहले कैप्टन रमजान साहब एज ए डायरेक्टर है, फिर हमारे चेयरमैन बने, हमें उन्होंने पूरा बैकअप दिया और इस पौधे को उन्होंने संवारने में बहुत मेहनत की है। मतलब फिलहाल तो मैं रहा हूँ या भाई था मेरे साथ, मेरे कुछ और कलीग्स हैं जो आज यहाँ पे आए हुए हैं भी, उन्हें बहुत हेल्प की है हमारे सिलसिले में, लेकिन एक प्रोसेस है, चलना होता है। तो उनके जाने के बाद अब जो जिम्मेदारी दी थी प्रिंसिपल की, वो मेरे जिम्मे दोनों इंस्टीट्यूट्स की आ गई, फैसलाबाद कॉलेज की भी और पीडी खान कॉलेज की भी, और जो डायरेक्टर थे हमारे वो तैयार साहब को बना दिया गया। तो मैं तैयार साहब से दरख्वास्त करूँगा कि मुसरफ से तलफात में आके आप लोगों से खिताब करें। जनाब ताहिर महमूद, डायरेक्टर कास्केट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। साहिब सदर जनाब मिर्ज़ा गुलाम अहमद बेग साहब, मियाँ मुदस्सर शाह साहब, रीजनल मैनेजर पार्को, साहिब तकरीब जनाब शाह साहब,
प्रिंसिपल कैस्केट कॉलेज पिंड दादन खान खालिद मसूद अवान साहब और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, बुज़ुर्ग वारम और दोस्तों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे तकरीब अवार्ड की तकरीब के सिलसिला में आप लोगों को यहाँ पे खुशामदीद कहता हूँ और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाला, यहाँ पर आए, वालिद साहब को याद किया और जो भी दुआ ये जो भी सिलसिला है उसमें आप लोग शामिल हुए और अपने नेक ख्यालात का इजहार किया। बाकी वालिद साहब के मुतल्लिक बाकी प्रोफेशनली तो इनके दोस्त हैं, जितना उन्होंने कहा और भी इनके दोस्तों में कुछ आना था, आज नहीं आ सके। जितना भी कहा जाए वो कम है। तो बीइंग अ फादर नहायत ही शफीक बाप थे और हमारे साथ काफ़ी मतलब फ्रेंडली उनका माहौल था और ज़िंदगी में हमें कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं उनकी मौजूदगी में और एक घने सायादार दरख्त की तरह थे हमारे लिए। ये जो तकरीब है इसके दो मकासद हैं। एक तो ये है कि जो लोग भी चाहे जैसे भट्टी साहब ने कहा बाज़ अमर लोगों ने तहसील में अच्छे काम किए हैं और जो अभी भी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि फेयर तरीके से उन लोगों को थोड़ा सा ट्रिब्यूट दिया जाए, उनकी इज़्ज़त अफजाई की जाए और वालिद साहब के नाम से उनको ये अवार्ड दिया जाए। दूसरा, इसी बहाने हम इकट्ठे होके उनको याद कर लें जी, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। वालिद साहब के मुतल्लिक़ मैं आखिर में यही कहूँगा कि गुज़र तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन बहुत उदास बहुत बेकरार गुजरेगी। आप लोगों को मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का कि आप लोग यहाँ पे आए और हमारी इज़्ज़त अफजाई की। थैंक यू।